اس لیے خان صاحب نے کہا ہے کہ میرے سے معافی مانگی جائے بجائے اس کے کہ میں کسی ایونٹ پہ معافی مانگوں. وہ میں کا ہو چاہے وہ پھر 5 اگست کو ودن منٹس اس کی گرفتاری ہو. اس لیے خان صاحب نے کہا ہے کہ میرے سے معافی مانگی جائے بجائے اس کے کہ میں کسی ایونٹ پہ معافی مانگوں. خان صاحب نے بڑا کنسرن شو کیا ہے جو ٹیکس کلیکشن ہے. اسی طریقے سے IMF کے پروگرام پہ ایک تشویش کا اظہار کیا ہے. آلدو ہم بہت کوشش کر رہے ہیں کہ ملک آگے کی طرف بڑھے، اکانومی ملک بہتر ہو، عوام کے لیے سہولتیں ہو، لیکن ویلتھ کی کلیکشن کریشن نہیں ہو رہی. ٹیکس کلیکشن ہو لیکن عوام پہ برڈن پڑے، اس کی خان صاحب نے بڑی تشویش کا اظہار کیا ہے. اس بات کا بھی اظہار کیا ہے کہ جو ابسولوٹ پاور ہوتا ہے وہ بندے کو کرپٹ کرتا ہے. کوشش کی جا رہی ہے کہ سارے طاقتوں کا سرچشمہ طاقتور لوگ ہو. اس لیے خان صاحب نے اس پہ تشویش کا اظہار کیا ہے کہ رول آف لا ہو تو ٹیکس کلیکشن بھی ہوں گے، اکانومی بھی ہوگی اور پولیٹیکل سٹیبلٹی ہوگی تو ملک کی ترقی بھی ہوگی. ان چیزوں کے علاوہ نہ ملک کی ترقی ہو سکتی ہے نہ ملک آگے کی طرف بڑھ سکتا ہے. آپ جلسے کی اجازت نہیں دیتے ایک اسپیسیفک پولیٹیکل پارٹی کو جو پاکستان تحریک انصاف ہے یا اس کے الائنس ہے. آپ کنونشن کی اجازت نہیں دیتے ہو، آپ ریلی کی اجازت نہیں دیتے ہو. پرامن طریقے سے نکالنے کے لیے ایک چھوٹی سی کنونشن کی اجازت نہیں ہے. تو اس لیے یہ ایک طاقت استعمال ہو رہی ہے ایک ہی پولیٹیکل پارٹی کے. اس کو آپ پولیٹیکل سٹیبلٹی کی طرف ایک قدم نہیں کہہ سکتے. یہ انسٹیبلٹی کریٹ کرتا ہے اور یہ وہی پوائنٹ ہے جو IMF نے اپنے رپورٹ میں تذکرہ کیا ہے. خان صاحب نے آج کاکڑ کی سٹیٹمنٹ پہ جو فارم 47 سے ریلیٹڈ ہے اس پہ بھی خان صاحب نے ڈائریکشن دی ہے کہ کورٹ میں ایک پٹیشن فائل کریں گے. جو ہم نے پہلی سٹیٹمنٹ دی تھی اور پٹیشن سپریم کورٹ میں فائل ہو چکے تھے فارم 45 اور 47 سے ریلیٹڈ، اس میں اس کو بھی ہم انکلوڈ کریں گے. آج ہم آپ کو یہ بتائیں کہ بارہا ہم عدلیہ کو کہتے ہیں کہ ہمیں آپ کا احترام ہے اور آپ پہ اعتماد ہے، لیکن جتنے تیزی کے ساتھ خان صاحب کے خلاف ٹرائل چلتے رہے، 5 دنوں میں 3 کنوکشنیں ہوئی، اسی طرح خان صاحب کو ریلیف دینے کی کوشش کبھی نہیں کی گئی، بلکہ خان صاحب کا جو رائٹ بھی بنتا ہے اس کو بھی نہیں سنا جاتا. اب کل عدت والے کیس کی ہیئرنگ ہے. خان صاحب کی اسپیشل یہی فرمان کے مطابق میں ریکویسٹ کر رہا ہوں جج صاحب سے، لاسٹ ڈیٹ آف ہیئرنگ پہ جج صاحب نہیں اویلیبل اور لمبی ڈیٹ پڑی. پھر پراسیکیوشن کی طرف سے تاخیری کارروائیاں کی جاتی ہے اور ہر مرتبہ کوئی نہ کوئی بہانہ کیا جاتا ہے. ہم سب سے درخواست کرتے ہیں، جج صاحب سے ڈائریکٹلی خان صاحب کی درخواست ہے کہ کل میرے کیس کی ہیئرنگ کر کے اس پہ فیصلہ کر دے، عدت والے کیس پہ. یہ ہماری آپ سے درخواست ہے. کشمیر والے ایشو پہ خان صاحب نے تشویش کا اظہار کیا ہے. خان صاحب نے امید ظاہر کی ہے کہ یہ سنجیدہ معاملہ ہے. کشمیر کے معاملے پہ سیاست کے بجائے تحمل سے کام لیا جائے. کشمیر کے معاملے پہ خان صاحب نے کیا ہے کہ آپ نے حکومت ایک پارٹی کی ختم کروائی، عوام ریلیف مانگ رہی ہے، مہنگائی سے لوگ تک چکے ہیں. عوام کے مطالبات بجائے اس کو صحیح طور سے ایڈریس کیا جائے. پاکستان تحریک انصاف عوام کے مطالبات کے ساتھ کڑی ہے. عوام کا مطالبہ ہے بلوں سے ریلیٹڈ، مہنگائی سے ریلیٹڈ ان کو ریلیف دیا جانا چاہیے. کشمیر بڑا ایک سینسٹیو ایشو ہے، اس پہ ایک اچھا موقع پانا چاہیے اور کشمیر کے عوام کو ریلیف دینا چاہیے جو ان کا حق بنتا ہے. جی پلیز. سپریم کورٹ کا بیان ہے جس میں انہوں نے یہ بتایا کہ 35 ارب روپے جو ہے اس کے اوپر مزید پروفٹ لگ چکے 13 ارب روپے. لیکن جو نیب ٹیم ہے انہوں نے اس کی تردید کی ہے. انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ ہے وہ تو انہوں نے جو ابھی تک بیان ہی عدالت کے اندر جو ہے وہ قلم بند نہیں کر رہے. دیکھیں، آپ کے پاس جو گواہ کے سٹیٹمنٹ آئے ہیں، آپ لوگ وہاں بیٹھے ہوں، گواہ جتنے بھی آ رہے ہیں، مین سٹیٹمنٹ یہی ہے کہ یہ پیسے جو جہاں جمع تھے اس پہ تو obviously ایک پروفٹ بیئرنگ اکاؤنٹ میں ہوتا، اس پہ پیسے کتنے بنے اور کتنی اماؤنٹ بنی اور کس اکاؤنٹ میں ہیں، یہ تو فیکچول ایشو ہے. وہ آئے ہوئے ہیں اور وہ وہاں موجود ہے، وہ پیسے موجود ہے. دس از ون تھنگ. جو ہمارا موقع پہ اور خان صاحب ایکچولی بتانا چاہ رہے ہیں وہ یہی ہے کہ فائنانشیل آفیسر آیا تھا یونیورسٹی کا اور جو سرکار کے باقی گواہ آئے تھے، 2 چیزوں کا بڑا
एडमिट किया उन्होंने, पहली चीज़ जो उन्होंने एडमिट की है वो ये है कि इस ट्रांजैक्शन से सरकार को लॉस नहीं हुआ है। और दूसरी चीज़ जो उन्होंने एडमिट किया वो ये है, यस खान साहब को इससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ, ना उसने ज़ाती फ़ायदा लिया हुआ है। और तीसरी चीज़ जो यूनिवर्सिटी वाले हैं उन्होंने कहा, यस ट्रस्टी को भी मालिक नहीं बनता, ये ट्रस्ट की अकाउंट है और ट्रस्ट की मलकियत है। आज खान साहब ने भी आपको कहा कि क्या शौकत खानम मेरी मलकियत है, क्या नमल यूनिवर्सिटी मेरी मलकियत है। वो ऑलमोस्ट 1000 कनाल पे उनकी कंस्ट्रक्शन हो चुकी है, इसलिए ट्रस्टी कभी मालिक नहीं बनता, ये उसकी ज़ाती मलकियत नहीं बनता, इसलिए खान साहब ने कोई फ़ायदा नहीं लिया। देखिए मैंने वो स्टेटमेंट नहीं देखी कि वो रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट की, नहीं उन्होंने स्टेटमेंट दिखाई है, मैंने वो देखी नहीं है कि वो रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट एविडेंस के लिए आए हैं या नहीं आए। अगर उनकी लिस्ट पे मौजूद है तो वो आएंगे। लेकिन मैं कह दूँ जो पॉइंट उन्होंने मैं रेस करना था वो ये, खान साहब ने फ़ायदा नहीं लिया ज़ाती, खान साहब की मलकियत नहीं है, स्टेट को नुकसान नहीं हुआ, खान साहब ट्रस्टी हैं, ओनर नहीं है। जी प्लीज़। सवाल में ये था कि आपने तो मुझे बात है कि नून लीग चाहती है कि मुज़ाकरात हो, नवाज साहब ने कल कहा है कि नवाज शरीफ है, तो मुज़ाकरात के हवाले से खान साहब ने क्या कहा और क्या बनेंगे? देखिए खान साहब की मुज़ाकरात के सिलसिले में आज भी वही पैगाम है कि मैं पहले कह चुका हूँ, डायलाग होने चाहिए, लेकिन डायलाग में कर रहा हूँ, मैं डील नहीं कर रहा। और जब हम डायलाग कर रहे हैं तो पाकिस्तान के लिए ही कर रहे हैं, नहीं ज़ाती मुफादात और इनारों के लिए कर रहे हैं। इस बात का ज़रूर एक है कि राना सनाउल्लाह ने जो स्टेटमेंट दी है, ये इस बात का मौक़िफ़ है कि वो एक भी चीज़ मान चुका है कि यस खान साहब एक हकीकत है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हकीकत है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो विक्ट्री है वो एक हकीकत है, वो फाइनली ये मान चुके। तो इट्स अ गुड साइन कि ये उन्होंने ये मान चुके हैं। देखिए पार्टी के एक मिनट पार्टी के इंटरनल मामलात पे यहाँ बात नहीं करते, वो हम कर चुके हैं। जी मेरा ये कश्मीर पे सवाल है कि आपने कहा कि वहाँ पे हुकूमत ख़त्म की गई, वहाँ पर पहले वज़ीर आज़म को खुद हटाया, उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि अली अमीन गंडापुर के हवाले में आज़ाद कश्मीर का खजाना नहीं कर सकता था क्योंकि वो वज़ीर अमूर कश्मीर थे। दूसरे वज़ीर आज़म ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ आज़ाद कश्मीर के ख़िलाफ़ कहा था कि मैं उसके ख़िलाफ़ बयान दिया था, जिस पर वो अदालत से नाअहल हुए थे। और जो तीसरे वज़ीर आज़म अभी हैं, ये लाहौर इमरान खान से मुलाकात करके उसके बाद देखिए मैं आपको ये कह रहा हूँ, मुलाकात नहीं, ये देखो बात ये है कि जो पहले क्या स्टेटमेंट दी हैं वो पॉलिटिकल स्टेटमेंट लीडर एक दूसरे के ख़िलाफ़ देते रहते हैं, लेकिन खान साहब ने आज भी आपने यही क्वेश्चन किया था, लेकिन जो मेन मकसद खान साहब का पैगाम लोगों को पहुँचाना है, वो पब्लिक इस डिमांड को सपोर्ट कर रहे हैं कि यस महंगाई बढ़ी है, गैर ज़रूरी किस्म के लोगों को बिल जा रहे हैं, हुकूमत को स्टेप्स लेने चाहिए ताकि आवाम का वो एड्रेस हो, तो वो जो उन लोगों में इस्तराब पाया जाता है और जो तशद्दुद पे जो सारी एहतजाज पे मजबूर कर रहे हैं, वो उनका जो जवाज़ है वो ख़त्म हो जाए। इस बात के लिए खान साहब ने निशानदेही की है कि सेंसिटिव मैटर है कश्मीर का, इसको फ़ौरन एड्रेस किया जाए। जी प्लीज़। वो स्टेटमेंट हम शेयर करेंगे, वो कराची के उसकी है, कराची के बैंकर की है। साहब ने इंडोर्स किया, लेकिन हमारे पास इतना है कि वो रजिस्ट्रार की नहीं, वो नेशनल बैंक के, यस बिल्कुल, देखो नेशनल बैंक का है, वो आया और वो डिटेल दे रहा था अपने बैंक अकाउंट के, शायद ये इंतज़ार खड़ा हुआ था उनसे बेक अल्फाज में कोई बेक फोर्थ हुई होगी। सुप्रीम कोर्ट का रजिस्ट्रार का मैंने लिस्ट ऑफ जो है कैलेंडर ऑफ विटनेसेस, उसमें मैंने नाम नहीं देखा क्योंकि उसकी ज़रूरत है कि नहीं, क्योंकि अमाउंट पड़ी है नेशनल बैंक में और नेशनल बैंक में जो अकाउंट पड़ी है वो वहाँ मौजूद है, डॉक्यूमेंट्री है। लेकिन ये साहब की बात ठीक है, वो जो स्टेटमेंट जिसको जिक्र कर रहे थे वो बैंक वाला है। इसमें हुआ ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्रार ने पैसे होने अपने अकाउंट में आने का उन्होंने एडमिट किया है, और दूसरे नंबर पे उन्होंने इस पैसे को फर्दर इन्वेस्ट करने की जो है वो भी उन्होंने बताया कि इन्वेस्ट हुआ है, और उस इन्वेस्टमेंट के नतीजे में 13 अरब रुपए का बेनिफिट आया है सुप्रीम कोर्ट को। तो ये चीज़ रिकॉर्ड पे आई है थ्रू जो नेशनल बैंक के हमारे कराची से एक नुमाइंदा आए थे, उनकी स्टेटमेंट के थ्रू। तो रजिस्ट्रार की सिर्फ परमिशन है कि उन्होंने इन्वेस्ट किया है, और ये स्टेटमेंट जो है वो फाइनेंशियल ऑफिसर बैंक के हैं उनकी तरफ से आई। हो गया जी। मुज़ाकराती कमेटी को क्या जो वो हासिल हुआ है सारे सिलसिले में, क्या मुज़ाकरात आगे चल? देखिए मुज़ाकराती कमेटी नहीं है, सारे बंदे उनके पास खान साहब ने जो इख्तियार दिया, लेकिन आज तक उसमें कोई पेशरफ्त नहीं हुई है।
मुज़ाकरात में डायलॉग पे आज तक कोई पेश रफ्त नहीं हुई है, न कोई अप्रोच किया गया, न अप्रोच करवाया गया है, न किसी वो है। इसलिए अगर कुछ हुआ तो हम आपको ज़रूर इतला करेंगे कि क्या पेश रफ्त हुई है। थैंक यू सो वेरी मच। अच्छा जी जी। खान साहब ने पिछली दफ़ा जब आरिफ अलवी साहब उनसे मिले थे तो ये बताया गया था कि मेडिकल दिया गया है, उस बारे में कोई बताएंगे? देखिए खान साहब ने ये कहा है, खान साहब ने आपके सामने भी कहा कि देश बिल्कुल हमने उसके लिए टाइम लिया था सदर साहब के लिए, और उसके गुड विल ऑफिसेज़ है, बिल्कुल वो इन टच है, जिस तरीके से वो कोशिश कर रहे हैं और आगे की तरफ बात बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो सिर्फ एक माहौल उसके लिए है, वो आए थे, उनको कोई ख़ास जिम्मेदारी इस तरह खान साहब ने नहीं दी कि कोई आप ज़रूर जाके डायलॉग कर ले, लेकिन वो अपना रोल प्ले कर सकते हैं जो भी है। मेडिकल के बारे में ये मेडिकल के बारे में आपको बता रहे हैं, कोर्ट ने एक ऑर्डर किया। खान साहब के मेडिकल के ऊपर जो कंसर्न था हमारा, पिछले हफ्ते भी एक ऑर्डर आया था, जिस ऑर्डर के मुताबिक खान साहब का मेडिकल एग्जामिनेशन और उनके जो टेस्ट हैं वो शौकत खानम अस्पताल के जो हमारे ट्रस्टेड डॉक्टर्स हैं और पिम्स अस्पताल के जो डॉक्टर्स हैं, वो क्योंकि रूल्स के अंदर पिम्स अस्पताल है, लेकिन कोर्ट ने ये परमिट किया कि हमारी सेटिस्फेक्शन के मुताबिक हमारे जो अपने डॉक्टर्स हैं उनके साथ मिलकर टेस्ट हो सकें। उसके ऊपर पिछले हफ्ते टेस्ट ना करवाए जा सके, जिसके ऊपर आज हमने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट फाइल की और अदालत ने हमारी दरख्वास्त को मंजूर किया है और कैटेगोरिकली ऑर्डर फरमाया है, जिसके मुताबिक इसी रवां हफ्ते के अंदर उन्होंने वाज़े लिखा है कि शौकत खानम अस्पताल के डॉक्टर्स खान साहब के मेडिकल एग्जामिनेशन करें और उनके ब्लड टेस्ट लें। इम्पोर्टेंट ये है कि ब्लड टेस्ट लें, उनके साथ जो हैं वो पिम्स की टीम भी शामिल होगी और दोनों जो हैं वो अपनी अपनी रिपोर्ट जारी कर सकें। थैंक यू।